Starting. Any paper, any paper. I just want to take your attendance. I'll just say the names. Just let me know if I miss out somebody. अभिनव, अजय, अनिल, बस मुझे बता देना किसी का रह गया हो तो, ठीक है? अंशिका, अश्विन, भू, चिराग, दया, हर्ष, उप्रीति, पूजा, प्रख्यात, प्रकृति, कृतिका, साई, तान्या, तृष्णा, विभू, विवेक. I hope I have time. Now we are going to start with this new topic. The chapter is visible surface determination. Ajay, am I audible? Ajay? Abhinav, am I audible? Okay. And the screen is also visible, right? Okay. So the name of the chapter is visible surface determination. कहने का मतलब है, if you have been given a 3D object, you have to determine what part of it is visible and what part of it is not visible. Not visible मतलब hidden. ऐसा कब होता है? दो सूरतों में होता है. जब आपके पास ऑब्जेक्ट के अलावा और ऑब्जेक्ट्स भी विसिनिटी में है, ताकि एक या दो ऑब्जेक्ट्स उसके आगे हैं. देन अगर वो ऑब्जेक्ट आपका ओपेक है तो आपको पिछला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है. दूसरी कंडीशन तब होती है जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट के ही मल्टीपल फेसेस होते हैं. जैसे क्यूब है. क्यूब में अगर आपने इसको एक क्यूब को देखेंगे तो फ्रंट साइड से देखेंगे तो उसका बैक साइड नहीं दिखाई देगा. So you have to find out in all the objects that which part of it is visible. Part का मतलब है, graphics में we talk in terms of curves and surfaces. About surface. Surface is made up of a number of curves. Curves को अगर approximate करेंगे तो it looks like a line. अगर कर्व को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो you will have multiple lines. So the name of the topic is visible surface determination, short form में VSD, or the name is visible line determination. Otherwise, you can do it the opposite way, hidden surface determination and hidden line determination. Then, then moving back to the presentation, here in this topic, you have to do 3 algorithms. The first topic is Z buffer, which is also named as depth buffer algorithm. The next is depth sort algorithm, and uske baad you have one more, that is area subdivision algorithm. So these are the three algorithms which you have to do. Out of these three algorithms, Z buffer is to be implemented in your practical list. Depth sort and area subdivision, you just need to know the concept and its pseudocode. Right?
Now, moving on to the next screen. Before we move on to these type of algorithms, we need to understand that there are two approaches. First approach is called as object space method and another is called as image space method. Object space method में क्या होता है? It decides which object as a whole is visible and it determines which part of the object are visible. दूसरा होता है image space method. Image space method होता है where the visibility is decided pixel by pixel. You determine per pixel which portion of an object is visible. तो अगर ये आपकी स्क्रीन है तो स्क्रीन का ये टॉप पार्ट है, ये आपका बॉटम पार्ट है, आप हर पिक्सल पे देख रहे हैं कि इस सेल के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट जो है विजिबल है, फिर नेक्स्ट सेल के अंदर, फिर नेक्स्ट सेल के अंदर, फिर नेक्स्ट रास्टर लाइन पे जाते हैं, फिर इस सेल के अंदर, फिर यहाँ, मूविंग ऑल टिल द लास्ट पिक्सल. So here visibility is determined by pixel, whereas here it is determined object by object. So thus the name object space method and image space method. संतोष, यहाँ तक क्लियर है बेटा? संतोष? Yes, ma'am. Now look at the pseudocode for these algorithms. पहले हम बात करते हैं इमेज स्पेस. इमेज स्पेस की पहले बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रास्टर सिस्टम है और आप सारा काम प्रैक्टिकली रास्टर सिस्टम पे करते हो. पिक्सल बाय पिक्सल डिसाइड करते हो ना कहाँ कहाँ पे लाइन के कोऑर्डिनेट्स हाई रहेंगे और कहाँ पे पूरे रास्टर इमेज में आपके बैकग्राउंड कलर रहेगा. तो क्या कर रहे हैं? फॉर ईच पिक्सल इन द इमेज, इमेज मतलब आपका डेस्कटॉप जो भी आपकी स्क्रीन है वो, determine the object closest to the viewer that is perceived by the projector through the pixel. कहने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करो जो सबसे आगे है, क्योंकि उसके पिछला वाला ऑब्जेक्ट तो दिखना ही नहीं है. एंड देन ड्रॉ द पिक्सल इन द एप्रोप्रिएट कलर. अगर आप ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉर ईच पिक्सल इन द इमेज, इट इज फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड. You have to determine those parts of the object whose view is unobstructed by other parts of it or any other object. So you determine, हर ऑब्जेक्ट में बात करते हो आप. अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं तो आप एक ऑब्जेक्ट को उठाओगे, उसको बाकी 4 से कंपेयर करोगे और साथ में उसको उसके साथ भी कंपेयर करोगे, खुद के साथ भी, कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो अनऑब्स्ट्रक्टेड है, जिसके आगे कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है. And then you draw those parts in appropriate color. So पहले वाले केस में क्या है कि it determines which of the n objects are visible at each pixel in the object. Whereas here in the second part you compare the objects directly with each other, eliminating entire object or portions of them that are not visible. तो यहाँ पे for loop जो है ऊपर आपका static रहेगा depending upon your resolution. अगर आपकी रेजोल्यूशन 640 बाई 480 है तो ये फॉर लूप आपका 640 बाई 480 चलेगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स हो गए 640 इंटू 480. और ये जो है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड, इसका फॉर लूप चलेगा कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी विसिनिटी में. अगर आपकी जो एक सीन बना है उसमें 10 ऑब्जेक्ट हैं तो ये 10 बार चलेगा. अगर उसमें 20 ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये फिर 20 बार चलेगा. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी फिक्स्ड हो गई, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आपकी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तक हो गई. हाँ जी दया, यहाँ तक क्लियर है बेटा? दया शंकर, इज इट क्लियर? चिराग, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the difference between the two. पहला है इमेज स्पेस, सेकंड है ऑब्जेक्ट स्पेस. सबसे पहले वाले में it determines which of the n objects are visible at each pixel.
Whereas here it compares objects directly with each other, eliminating entire object or portions of them that are not visible. Here the computation speed in the case of image space is n into p, where n is number of objects and p is number of pixels. Whereas here the computational speed is n square, where n is number of objects. Why it is n square? क्योंकि आप हर ऑब्जेक्ट को उस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उसके खुद के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पर आप हर पिक्सल पे चूज कर रहे हो, p पिक्सल्स पे चूज कर रहे हो कि कौन सा n ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल है. अगर आपको स्पीड की बात करनी है कि स्पीड अच्छी रहे एल्गोरिथम की, तो इमेज स्पेस लेना चाहिए. और अगर आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्ट स्पेस चूज करना चाहिए. हियर द विजिबिलिटी इन द केस ऑफ इमेज स्पेस इज determined at each pixel level, whereas here the visibility is determined for each object. This was first developed for raster system, whereas object space was developed for vector system. Then one of the example for image space method is Z buffer algorithm, जो अभी हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है. और object space method में you have one example of scanline algorithm, जो हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है. अच्छा, डेप्थ एल्गोरिथम जो होता है, जो सेकंड एल्गोरिथम आपको इस चैप्टर, it combines object and image determination both. So obviously your depth sort algorithm will be much better than Z buffer algorithm, which implements only on the lines of image space method. Right? Now, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी प्रख्यात, यहाँ तक क्लियर है? Yes. एग्जाम में आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है मैंडेटरी वाला, उसमें ये मुश्किल से 2 नंबर का आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज स्पेस एंड ऑब्जेक्ट स्पेस, एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, और इट कैन कम एज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन दैट if the speed is to be chosen, then which of the algorithm you would choose, right? The choice will be between Z buffer and depth sort. So your answer should be Z buffer because it relies only on the image space method, which is chosen for speed. Whereas your depth sort algorithm combines object and image space, though its accuracy will be better than the Z buffer algorithm, but its speed will not be as high as that of Z buffer algorithm. Right? Then moving मैम on to नंबर the ऑफ पिक्सल्स तो मैम नंबर ऑफ पिक्सल्स तो बहुत ज्यादा होंगे ना एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हाँ, तो वो तो आप रास्टर में जब आप लाइन भी ड्रॉ करते हो, तो लाइन ड्रॉ करते वक्त भी आपने लाइन के इनिशियल और बाकी के कोऑर्डिनेट्स, फाइनल कोऑर्डिनेट्स के बीच के सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. लेकिन जब आप लाइन को एक्चुअली में ड्रॉ कर रहे हो, तो बाकी जगह पे तो आप बैकग्राउंड कलर देते हो, और जो ये आपने पॉइंट्स बताए हैं, सिर्फ यहाँ पे आप राइट पिक्सल कराते हो, राइट? तो तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है मैम वो बेटर उसमें तो इसलिए है. सुनो, वहां पे भी तब भी आपकी परफॉर्मेंस इसलिए बेटर है क्योंकि नंबर ऑफ पिक्सल्स आर स्टैटिक जितनी आपकी रेजोल्यूशन है. पेयर योर ऑब्जेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट, then in that case your complexity is very high. Why complexity is high? क्योंकि ऑब्जेक्ट में सरफेसेस भी है, कर्व्स भी हैं, राइट? तो हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ये कौन कौन से पिक्सल पर है. मे बी आपको इसका आंसर और अच्छा क्लियर हो जाए जब हम जेड बफर और डेप्थ सॉर्ट दोनों पढ़ लें. So can you would you be able to wait till that time for this for the answer of this question? ओके मैम. ठीक है. Now let us talk about Z buffer algorithm. First algorithm, this is an image space algorithm. It is also called as a depth buffer algorithm and it was developed by Catmull. देखो, ये एक नॉर्मलाइज्ड व्यू है आपके पास. ये व्यूइंग प्लेन है, ये दिस इज योर व्यूइंग प्लेन. ये ऑब्जेक्ट्स है आपके, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट्स को देखना है. अब
ये एक पिक्सल, ये पूरी स्क्रीन हो गई ना, आपकी मॉनिटर की स्क्रीन हो गई। तो आप हर पिक्सल पे देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका विजिबल है। तो मान लीजिए ये पिक्सल है आपका जिसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब आपने देखा तो फ्रंट वाला ही विजिबल होगा, ठीक है। सो एल्गोरिथम विल ड्रॉ द पॉलीगन्स एंड रिमेंबर ओनली द कलर which is most in the front. Now in this algorithm there are two buffers instead of one buffer, ठीक है। अभी तक आपने बात करी थी फ्रेम बफर की। फ्रेम बफर मेमोरी का वो एरिया होता है जहां पे हम कलर वैल्यूज हर पिक्सल के लिए सेव करते हैं। जितनी हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है उतना ही इस फ्रेम बफर का साइज होता है। अगर हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 640 इंटू 480 है, तो हमारा जो फ्रेम बफर का साइज है वो एक 2 डायमेंशनल टेबल है जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारी 640 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 480 है। अगर ये रेजोल्यूशन हमारी बढ़ जाती है 1024 इंटू 680 हो जाता है, देन अकॉर्डिंगली द साइज ऑफ द फ्रेम बफर विल चेंज। और इस फ्रेम बफर, ये जो 2 डायमेंशनल टेबल है, इसके अंदर जो वैल्यू सेव्ड होती है वो कलर की वैल्यू सेव होती है हर पिक्सल पे, कि उस पर्टिकुलर पिक्सल पे क्या बैकग्राउंड कलर है या कोई ऑब्जेक्ट का कलर है। तो जब हम इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो इस फ्रेम बफर के अंदर इनिशियली हर पिक्सल वैल्यू पे बैकग्राउंड कलर है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द vicinity. Likewise, you have one more buffer in case of Z buffer algorithm. That Z buffer will store the depth values for each pixel. हर पिक्सल के लिए डेप्थ वैल्यू को स्टोर करते हैं। डेप्थ वैल्यू को Z वैल्यू भी कहते हैं। इनिशियली हम मान के चलते हैं कि हमारी जो डेप्थ वैल्यू है वो 0 है। एक्चुअली में हमारे पास दो प्लेन्स होते हैं, एक होता है बैक क्लिपिंग प्लेन और एक होता है फ्रंट क्लिपिंग प्लेन। बैक क्लिपिंग प्लेन आप मान सकते हैं कि ओरिजिन पर है, और ओरिजिन से आप जितना यूजर के पास आते जाएंगे, आप बैक क्लिपिंग प्लेन से और आगे आते जाएंगे। आगे आते जाएंगे का मतलब है आप यूजर के पास आते जाएंगे, और एट द मोस्ट आप यूजर के आई के कितने पास आ सकते हैं, दैट इज योर फ्रंट क्लिपिंग प्लेन। You can assume that your back clipping plane is at 0 and your front clipping plane is at 1. Now, initially ये दोनों buffers को हमें initialize करना है। इनिशियलाइज करते वक्त Z बफर जो है it is initialized to 0, representing that Z value is at the back clipping plane, and the frame buffer is initialized to background color. दोनों चीजों को करने से क्या फायदा है? बैकग्राउंड कलर देने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यूजर की आई कहाँ तक देख पा रही है? जहां तक कि आपका बैकग्राउंड है, दैट इज एट 0. Obviously, the size of the Z buffer will be the same as that of the size of frame buffer. That means in case you increase the resolution of your system, then the size of frame buffer at the Z buffer will accordingly change. The polygons are scan converted in the frame buffer in any arbitrary order. अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो चारों ऑब्जेक्ट्स की रेंडरिंग करते वक्त, मतलब उनका देखते वक्त कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से पिक्सल पे दिखाई देगा, वो हम किसी भी आर्बिटरी ऑर्डर में कर सकते हैं। मतलब ऑर्डरिंग ऑफ द कंपैरिजन while at each pixel for every object is not important, and your user eye is assumed to be at positive infinity of z axis. Z axis में आपके पास 3 एक्सेस हैं, x, y and z. आपके पास यूजर की आई 6 एक्सेस पे हो सकती है,
positive infinity of z axis, negative infinity of z axis, positive infinity of x axis, negative infinity of y axis, positive infinity of y, and then x, and then z, right? Which are called as front, back, टॉप, बॉटम, रियर एंड वन मोर. लेकिन यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि यूजर की आई जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंफिनिटी ऑफ जेड एक्सिस है. इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है सबको? रमेश, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ मूविंग फर्दर, अब वर्किंग रूल इसका क्या है? इफ द पॉलीगन इज if the polygon being scan converted is at a pixel which is no further from the viewer, then is the point whose color and depth value are currently in the buffers, then the new point's color and depth value replace the old values. इस सेंटेंस को समझने के लिए पहले हम ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं. मान लो कि आपके पास दो पॉलीगन्स हैं. पहले पॉलीगन को आपने लेबल किया है P1 और दूसरे पॉलीगन को आपने लेबल किया है P2. अब स्कैन कन्वर्जन किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है जेड बफर में. ये कंडीशन है. हमने मान लीजिए सपोज वी आर स्कैन कन्वर्टिंग फर्स्ट पॉलीगन P1. P1 को स्कैन कन्वर्ट करने के लिए हम स्क्रीन के टॉप राइट से शुरू होके स्क्रीन के बॉटम टॉप लेफ्ट से शुरू होके स्क्रीन के बॉटम राइट तक आएंगे. मान लो सबसे पहला पॉइंट है आपका x, y पे. ठीक है. नाउ एट x, y ऑफ फ्रेम बफर, देखो दो बफर्स हैं, एक फ्रेम बफर है, एक z बफर है. ठीक है. फ्रेम बफर में कलर वैल्यू है, z बफर में डेप्थ वैल्यू है. डेप्थ वैल्यू इज कि फ्रंट क्लिपिंग प्लेन और बैक क्लिपिंग प्लेन पे कहां पर है. तो मतलब z एक्सिस में आप कहां पर है, क्योंकि यूजर की आई आपकी पॉजिटिव इंफिनिटी ऑफ z एक्सिस पे है. तो यहाँ पर at x, y of the frame buffer is stored its color value. मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की जो कलर वैल्यू है वो 4 है, तो 4 में भी रेड कलर. ठीक है. वो आपने x, y ऑफ फ्रेम बफर पे सेव करना. अब x, y ऑफ z बफर पे क्या स्टोर करना है, उसकी डेप्थ वैल्यू. मान लीजिए उसकी डेप्थ वैल्यू जो है वो z इक्वल्स टू 1 पर है. जब आपने ये x, y starting from your top right, top left of your screen and moving each scan line by scan line moving to the last point तक आ गए हैं, मतलब आपने पूरा फ्रेम बफर और z बफर में वैल्यूज अकॉर्डिंगली डाल ली है. अब आप स्कैन कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट इमेज को, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, नेक्स्ट पॉलीगन को, दैट इज P2 which is scan converted at same location, right? All these same locations when it comes to x, yth location. Now suppose the color value is 15. मान लीजिए वो ब्लू, रेड की बजाय अब ब्लू कलर है, एंड डेप्थ वैल्यू है 4. Now what it will do is that it will compare the z values in both the cases. मतलब it will see the z value of P2 at x, y and it will compare with the z value of P1 at x, y. Since the z value of P2 is higher than the z value of P1 at pixel position x, y, you know, 4 is higher than 1. So that means 4 is more closer to infinity as compared to 1, where the user's eye is there at infinity of z axis. So that means P2 object will be visible instead of P1 object at pixel position x, y. So this new value will replace the old value. So now your frame buffer will have at x, y it will have 15, and at z value, z buffer with x, y will have 4. मान लीजिए अगर आपके पास एक और पॉलीगन होता P3 और उसकी जो z वैल्यू है वो होती 7 और
फ्रेम और जो कलर वैल्यू है वो होती मान लीजिए 3, तो ये वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होती, और सॉरी 4 है ना यहाँ पे, मान लीजिए वो z वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होती क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4। आई होप यहाँ तक क्लियर है विवेक, ये एग्जाम्पल क्लियर है विवेक, इज दिस एग्जाम्पल क्लियर? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? विवेक है क्या यहाँ पे? एनीवे, हाँ जी, ठीक है। भूमि यहाँ तक क्लियर है बेटा? भूमि क्लियर है यहाँ तक? Ma'am. So, I read this working rule again. If the polygon being scan converted at pixel x comma y is no further from the viewer than is the point whose color and depth value are currently in the buffers, then the new point's color and depth value replace the old values. That means nutshell में अगर ये comparison हमारा true आएगा तो फ्रेम बफर और जेड बफर में चेंजेस होंगे, अदरवाइज फ्रेम बफर एंड जेड बफर will remain intact. Moving on to the next slide, which is the pseudocode of Z buffer algorithm. You do here is initialization. Initialization में सबसे पहले each Z buffer location में क्या आ जाएगा, minimum of Z value that is 0. And each frame buffer location में आ जाएगा आपका background color. अब आप अपना मान लीजिए जो जेड बफर का फंक्शन है उसका नाम आप रख रहे हैं जेड बफर। इस फंक्शन को डायरेक्टली सिर्फ फ्रेम बफर और जेड बफर की लोकेशंस में वैल्यूज में चेंज करना है। इट हैज it doesn't have to receive anything, it doesn't have to give back anything, so your return type is also void and there are no parameters to be given inside it because these are global buffers. Now you're declaring two variables x and y to so that you can have two loops here. Loop will go from y equals to 0 to y less than y max y plus plus, एंड इनसाइड एवरी y, ये है ना y, अब फिर नेक्स्ट स्कैन लाइन पे y आया, फिर नेक्स्ट स्कैन लाइन पे फिर से y आया, और हर y के अंदर आपका x जो है वो x0 से x प्लस प्लस xn तक जाएगा। तो एक और फॉर लूप लगाया आपने जो x0 से लेके x मैक्स तक जाएगा। हर बार आपने इनिशियलाइज करते वक्त क्या करना है, राइट पिक्सल कॉल करके एक्स वाई कॉमा बैकग्राउंड वैल्यू करना है। ऐसे ही आपको अपना राइट जेड बनाना पड़ेगा जो एक टेबल में, टू डायमेंशनल टेबल में आपकी एक्स वाई वैल्यू पे जाकर 0 को सेव कर रहा है, क्योंकि अभी आप मिनिमम जेड वैल्यू पर हैं। आई होप राइट जेड आप लिख लेंगे। राइट जेड में सिर्फ एक टू डायमेंशनल एरे बनाना है, टेबल बनाना है या एरे बोलो उसको। उस एरे में एक्स और वाई पोजीशन पे जाके 0 लिखना है। दैट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन, दैट इज क्लियरिंग योर फ्रेम बफर एंड जेड बफर। नाउ एल्गोरिथम की बात करें तो क्या करना है, फॉर ईच पॉलीगन, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, compute the z buffer, z value, depth at pixel x comma y. If the z value, z of x comma y, is greater than z of buffer value at the pixel x comma y, z buffer of x comma y में आ जाए z of x comma y। ये तो इंग्लिश में लिखा है, इसका सूडोकोड देखिए। फॉर ईच पॉलीगन, for each pixel in the polygon's projection, pz के अंदर आपने पॉलीगन की z वैल्यू लिया एट कोऑर्डिनेट पोजीशन x, y। चेक किया आपने क्या pz इज ग्रेटर देन ऑलरेडी स्टोर्ड z वैल्यू एट दिस x, y।
तो उस टेबल में से वैल्यू पढ़ने के लिए आपने एक फंक्शन और बनाया, रीड z। जैसे आपने यहाँ पे राइट z बनाया जिसमें आप एक्स वाई पे जाके 0 लिख रहे हैं, वैसे ही आपने एक रीड z बनाया जो एक्स वाई पे क्या लिखा हुआ है उसको रीड करेगा। आई होप द फंक्शन इज वेरी क्लियर टू यू। सिर्फ एक एक लाइन का फंक्शन है ये। अब क्या कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं जो ये करंट पी जेड वैल्यू है क्या इस रीड जेड वैल्यू से बड़ी है। अगर बड़ी है तो राइट जेड में एक्स वाई पे जाके ओवरराइट हो जाए पी जेड, और राइट पिक्सल पे एक्स वाई पे पॉलीगन का जो भी कलर वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो जाके चेंज हो जाए। अदरवाइज इसका एल्स आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये पी जेड की वैल्यू रीड जेड वाली इनिशियल एक्चुअल वैल्यू से कम है तो आपको राइट जेड बफर में और फ्रेम बफर में कुछ चेंज करना ही नहीं है। ठीक है अंशिका, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. अंशिका, Yes, ma'am. now here how do you find out your z values? अब बात ये रह जाती है, basically it uses your incremental calculations। देखो, if the polygon surface is planar, और हम assume करके चलते हैं कि हम सिर्फ planar figures की बात कर रहे हैं, then your fast calculation of z buffer takes place। ये क्या करता है, ये एक टाइप की कोहेरेंस को यूज करता है टू सॉल्व द प्लेन इक्वेशन। बेसिकली वो कोहेरेंस क्या है, वो एज कोहेरेंस को सॉल्व कर यूज कर रहा है। आई लेट यू नो इंक्रीमेंटल कैलकुलेशंस आर यूज्ड। मान लीजिए आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है और ये आपके पास पॉलीगन है। अब पॉलीगन में हर पिक्सल पे आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है जेड वैल्यू को। तो मान लो ये एक स्कैन लाइन है, ये जितनी भी रोज होती हैं ये एक एक स्कैन लाइन होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हर स्कैन लाइन के हर पिक्सल पे हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पहले x पे फाइंड करी, मान लो फॉर y पहले x पे फाइंड करी, y रिमेन स्टैटिक, फिर x प्लस 1 पे, फिर x प्लस 2 पे, फिर x प्लस 3 पे, फिर हमारी स्क्रीन खत्म हो गई। फिर हम नेक्स्ट पे आए y प्लस 1 पर, नेक्स्ट रो पर आए, दोबारा हमने x की वैल्यूज को दोबारा निकालना शुरू किया। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशंस करनी है ऐसे है। आपको मान लो मैं प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो इस बस इक्वेशन को रीअरेंज किया है तो आता है आपके पास माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस डी अपॉन सी। दिस z वैल्यू इज एट x, y पिक्सल। अब जब हमने इस रेड वाले की वैल्यू निकाल ली, अब हमें नेक्स्ट रेड की निकालनी है। नेक्स्ट रेड का मतलब है x से जा रहे हैं हम हॉप करके x प्लस 1 पे, दैट मीन्स z ऑफ x y से जा रहे हैं z ऑफ x प्लस 1 y पे। तो हमने RHS साइड ऑफ इक्वेशन में x की जगह डाल दिया x प्लस 1, y को एज सच रहने दिया। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो व्हाट वी फाइंड आउट इज जो z ऑफ x प्लस 1 y है वो है z ऑफ x y माइनस a बाई सी। तो कहने का मतलब है ये प्रीवियस वैल्यू में से हमने माइनस किया a बाई सी। प्लेन की इक्वेशन में a, b, c एंड d आर कांस्टेंट नंबर्स। दैट मींस a बाई c एक ही बार आपको इनिशियली कैलकुलेट करना था। मान लीजिए ये 5 है और ये आपका सॉरी ये आपका 6 है और ये आपका 3 है, तो 6 बाई 3 इज 2। तो आपने किया क्या, एक बार z ऑफ x y निकाला और हर बार उसमें से 2 2 माइनस करते गए, तो अगली z ऑफ x प्लस 1 y पे पहुंच गए। फिर ये जो वैल्यू आई उसमें से फिर 2 माइनस किया तो आप z ऑफ x प्लस 2 y पे चले गए। तो क्या हुआ, ये बेसिकली इंक्रीमेंटल कैलकुलेशंस को यूज कर रहा है कि एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया फिर आप एक चीज उसमें माइनस करते जा रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता जा रहा है।
सिमिलरली जब आप एक स्कैन लाइन से दूसरी स्कैन लाइन पे आ रहे हैं, दैट मीन्स z ऑफ x, y से आप z ऑफ x, y प्लस 1 पर आ रहे हैं। दोबारा इस इक्वेशन में आप y में y प्लस 1 लिखिए, x ऐसे ही रहने दीजिए, एंड जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो वो इनिशियल वैल्यू में माइनस हो रहा है b बाय c। तो हम कैलकुलेट तो हर पॉइंट पर कर रहे हैं z की वैल्यू, बट वो कैलकुलेशन जो है दैट इज सिंपली एन इंक्रीमेंटल कैलकुलेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। प्रख्यात, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Now, but if the polygon surface is not planar, then the z value is not simple to calculate. It is a function of x and y. That is, z of x, y can be determined by interpolating the z coordinates of the polygon vertices along the pair of edges and then across each scan line. इसको एक बार इस डायग्राम से समझिए। आपने जो z, ये एक स्कैन लाइन है, इस स्कैन लाइन में आप हर पॉलीगन में जहां जहां पे वो पॉलीगन इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, आप वहां पर ही z वैल्यूज को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो किया क्या आपने, पहले ZA निकाला, ZA पे पहला इंटरसेक्शन है, ZA पे जो वैल्यू है वो निकालने से पहले आपने हर पॉलीगन के वर्टिसेस पे z वैल्यूज निकालेंगे। Z value at P1 is Z1, Z value at P2 is Z2, Z value at P3 is Z3 and so on, it is Z4. यहाँ पे obviously आपको X1, Y1 values भी मालूम है, and here at ZA and ZB and ZP you also know the X and Y values, ठीक है? तो ZA की वैल्यू जो है, it is equal to this formula you will have to remember, Z1, that is this value, plus Z4 minus Z1 upon Y1 minus YS upon Y1 minus Y4. YS is this line, the current scan line which you are talking about. तो हुआ क्या कि ZA की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट किस पे हो गई, वो दोनों एजेस जो इस एज को डिटरमाइन करते हैं इनके एंड पॉइंट्स, दैट इज Z1 एंड Z4. दैट इज Z of x, y can be determined by interpolating the z coordinates of the polygon vertices. तो यहाँ पे हमारे पास पॉलीगन है P1, P4, तो इनके पॉलीगन के वर्टिसेस हैं P1 एंड P4, इनकी जो z वैल्यूज है Z1 एंड Z4, इनको इंटरपोलेट करने से हमें ZA की वैल्यू मिलती है along the pair of edges and then across each scan line. अब then across each scan line देखिए, similarly ZP जो है, B जो है वो Z1 और Z2 पे डिपेंडेंट है, if you see this formula. अब आप बात करेंगे ZP की, that is inside the scan line it will be dependent upon the value ZA and ZP. ये देखिए यहाँ पे है ZA plus ZB minus ZA and then the X values. So what I read the sentence again. Z of x, y can be determined by interpolating the z coordinates of the polygon vertices along pair of edges and then across each scan line. Is that clear? ठीक है, तो या तो वो edges के vertices पे डिपेंड कर रहा है, और जब आप विद इन अ स्कैन लाइन बात कर रहे हैं तो स्कैन लाइन में जो भी जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉलीगन, वो वाले z वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है तृष्णा? Yes, ma'am. Now let us see this example of a z-buffer. मान लीजिए अभी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपकी स्क्रीन ऐसी खाली नजर आएगी, सिर्फ लुक एट जस्ट दिस ब्लॉक,
तो ये ब्लॉक में आपके पास यहाँ पर जो डेप्थ वैल्यू है वो सारी जगह पे जीरोस होगी, और जो बैकग्राउंड कलर है इट इज शोन बाय वाइट कलर हियर। तो यहाँ पे ये सारा का सारा वाइट कलर होगा। अब आपने यहाँ पे मान लीजिए एक आपके पास ये एक ट्रायंगल सबसे पहला ऑब्जेक्ट आया। ये जब ऑब्जेक्ट आया तब आपने हर पॉइंट पे, अच्छा इस ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ वैल्यू है वो है 555 सब जगह, ठीक है, मान लो ब्लू कलर है, और इसकी जो कलर है वो इस कलर से डिफाइंड है, ग्रे सा कलर दिख रहा है आपको, और डेप्थ वैल्यू है सब जगह 5। तो उसने क्या किया, हर पॉइंट पे जाके कंपेयर किया, क्या क्या 5 ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो रिप्लेस करना है, और अगर क्या रिप्लेस करना है, डेप्थ वैल्यू को भी रिप्लेस करना है और कलर को भी रिप्लेस करना है। और अगर नहीं है, ये बाकी का दिखाया नहीं है, यहाँ पे जीरोस थे, जहां पे नहीं है वो जीरोस है, तो दैट मीन्स 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो वहां पे आपको चेंज नहीं करना। तो आपको स्क्रीन क्या दिखाई देगी अब, इस तरह से, depth value is 5 and the color is grayish here, और बाकी जगह पे आपके पास जीरोस है। अब आपके पास मान लो एक और ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें डेप्थ वैल्यूज ये हैं और कलर ये है आपके पास। तो अब आपने ये वाली फिगर उठाई, ये वाला वैल्यूज उठाया, इसमें आपने नए ऑब्जेक्ट को ऐड किया। जब भी आपने नए ऑब्जेक्ट को यहाँ ऐड किया तो जहां जहां पे 5 से ज्यादा है वैल्यू वहां पे रिप्लेसमेंट होगा, बाकी जगह पे रिप्लेसमेंट नहीं होगा। So this is how you will see your figure, and this is how you have to practically implement it. Is this clear? The example is clear. Ashwin, Z buffer का example clear हो रहा है? अच्छा ठीक है, सही क्लियर है यहाँ पे, सही सचिन क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, तानिया, is it clear? Am I Yes, ma'am. audible? हाँ जी, अच्छा ठीक है। Now the next thing is, what are the advantages of Z-buffer? Z-buffer algorithm is simple and fast. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है why it is a simple algorithm या why it is a fast algorithm. सिंपल इसलिए है because it is easy to implement and hardware supported. इजी टू इम्प्लीमेंट क्या करना है, मतलब दो एरेज ही तो डिक्लेयर कर रहे हैं, एक जेड बफर के लिए एक फ्रेम बफर के लिए, एंड हार्डवेयर सपोर्टेड क्योंकि आप सिर्फ उसमें एडिशन कर रहे हो और एडर आपके पास ऑलरेडी है, आपके सीपीयू में एडर होता है ना। देन पॉलीगन रेंडरिंग कैन बी डन इन एनी आर्बिट्ररी ऑर्डर, चाहे आप P1 P2 स्कैन करो या P2 P1 स्कैन करो, योर आंसर विल रिमेन सेम। And next is the primitive need not be polygon. It can be used to render any object if the depth and the color values can be determined. So these are the 3 points why it is simple. Next advantage is it is fast. Why it is fast? Because इसमें image space model use हो रहा है which is used for speed. That means there are no object-object comparisons. Second, it takes only one comparison per pixel for each polygon containing that pixel. हर polygon के लिए one comparison करता है हर pixel पर. And the color at each pixel does not need to be computed if the condition determined by visibility is not satisfied. अगर Z बफर वाला if कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप फ्रेम बफर की आप दूसरे ऑब्जेक्ट की कलर वैल्यू ही नहीं लेते हो क्योंकि आपको उसको चेंज ही नहीं करना है। सो योर कंपैरिजन ऑफ Z बफर तो हर पिक्सल पर होगा, लेकिन कंपैरिजन रिप्लेसिंग ऑफ द कलर वैल्यू तब होगी अगर Z बफर वाला कंपैरिजन ट्रू आता है।
अगर वो ट्रू ही नहीं आता है तो आपको दूसरा कंपैरिजन, दूसरा रिप्लेसमेंट करना ही नहीं। Then there are two disadvantages. One disadvantage is that it costs memory because जितनी स्पेस फ्रेम बफर ले रहा है उतनी ही स्पेस आपकी Z बफर पे ले रहा है। And second disadvantage is that transparency is tricky. आपने मान तो लिया कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे है तो आगे वाले ऑब्जेक्ट को ही का ही कलर आपको दिखाई देगा, बट अगर वो आगे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो आपको पिछले वाले ऑब्जेक्ट का भी कलर दिखाई देगा। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द कलर वैल्यू यू नीड टू ऐड द कलर वैल्यू। एडिंग नहीं होता है, एक्सोरिंग होता है वहां पर, तब आपके पास दोनों कलर वैल्यूज की मिक्स करके वैल्यू आती है। So that means your transparency is tricky. You need to understand that, you need to find out whether the object in front is opaque, transparent or translucent. Obviously we will not go into those complexities in this syllabus, right? So this is what we have to talk about Z buffer algorithm. Initially मैंने आपको बता दिया था इसमें आपको टॉपिक में आपको 3 एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं। पहला एल्गोरिथम है आपका Z buffer algorithm, which is also called as depth buffer algorithm. Next is your depth sort algorithm, and the last is your area subdivision algorithm. डेप्थ सॉर्ट एल्गोरिथम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बस, और जेड एरिया सब डिवीजन उससे छोटा है। सो आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट विद एरिया सब डिवीजन एल्गोरिथम। एग्जाम में इस चैप्टर में से आपका टोटल 9 मार्क्स का सिलेबस आ सकता है। 2 to 3 मार्क का आपका मैंडेटरी क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्वेश्चन बनेगा कि जेड बफर में क्या डिसएडवांटेज है या क्या एडवांटेज है, या फिर ऑब्जेक्ट स्पेस और इमेज स्पेस में क्या डिफरेंस है। और जो आपका मैंडेटरी क्वेश्चन है उसमें इन तीनों में से कोई भी एक एल्गोरिथम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने आता है। अगर एक साल डेप्थ बफर आ गया तो अगले साल आपका डेप्थ सॉर्ट आ जाएगा, फिर उससे अगले साल आपका एरिया सब डिवीजन आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका जो वो 5 मार्क का बनना है, दैट इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, दैट what is the technique which is used in area subdivision algorithm, या explain it with an example. वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे होता है ना राइट अ शॉर्ट नोट टाइप्स, वैसा वाला क्वेश्चन आएगा आपका। I'm moving directly first to area subdivision algorithm rather than first discussing your depth sort algorithm. Now, area subdivision algorithm is again an image space method, जैसे आपका Z buffer था, ठीक है? And it was developed by a person called Warnock, also called as Warnock. मैम आवाज नहीं आ रही। Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello.
नहीं आ रही मैम की आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई बोर करती है भाई ये बहुत ज्यादा। And yeah, are you able to hear me now? Yes, ma'am. कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? Are you able to see the screen? भूमि दिखाई दे रही है? यस मैम। कहाँ तक सुना था भूमि? मैम स्टार्टिंग ही करी थी आपने शायद। मतलब were you able to hear divide and conquer strategy? नहीं. नहीं। No, ma'am. अच्छा चलिए ठीक है. देखिए, area subdivision is the name of the algorithm. It was devised by a person whose name was Warnock. So the algorithm is also called as Warnock's algorithm. Now this is an image space method like your Z-buffer algorithm, and it takes advantage of area coherence in a scene. Here you use divide and conquer strategy. That means मान लीजिए आपके पास यू हैव दिस एरिया. एरिया क्या हो गया? आपका व्यू पोर्ट. व्यू पोर्ट हो गया आपकी मॉनिटर स्क्रीन. ठीक है. मान लीजिए if it is this algorithm assumes that your viewport is a square area, then it's an area which can be divided into four equal parts. Then
what it says is that an area of the projection plane is examined if the polygons visible in that area can be easily decided. अगर आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि उस एरिया में कहाँ पे कौन सा पॉलीगन डिस्प्ले होगा तब तो ठीक है, देन दे आर डिस्प्लेड. अदरवाइज इट इज रिकर्सिवली डिसाइडेड. रिकर्सिवली डिसाइडेड में क्या होता है, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी है, तो आप एरिया को डिवाइड करते हो. डिवाइड कैसे करना है, वॉर्नक का रूल है कि हमें जो एरिया को डिवाइड करना है into equal sized quadrants करना है. If the area is too complex to analyze easily, then you have to recursively subdivide a square into equal sized quadrants. Am I audible? तान्या सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, ma'am. So what you see here is that if this is your viewport and you have two triangles here, then in that case, if you're not able to find out which polygon will be visible, you divide it into four equal quadrants. In this area, now here you have four areas: area 1, area 2, area 3, area 4. Let us talk about area 1. Yahan pe you have only one now polygon, so you can easily decide. Area 3 में also you have only one polygon. Area 4 में you have only one polygon. Area 2 में again you have two polygons. So what you do is that you recursively subdivide this area into four equal quadrants. When you now divide it into four equal quadrants, then you find out in each of these areas. Now this is area 1, area 2, area 3 and area 4. Out of these, area 1, 2 and 4 may you can easily decide because you have only one triangle in area 1, one triangle in area 4, nothing is visible in area 2. You are still left with area 4, area 3. Area 3 में again you have polygon 1 here and polygon 2 here. So again you will recursively subdivide into four equal quadrants. Now you decide it, and if you are still not able to decide, then you have to recursively subdivide it into four equal quadrants till each quadrant is only 1 pixel size. I hope the concept is clear. Daya, यहाँ तक clear है बेटा? Daya Shankar, is it clear बेटा? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. okay. Now, at each stage, the projection of each polygon has one of the four relations to the area of interest. There are four relationships. Either it is surrounding polygon, कि मतलब ये जो है ना, this is your area of interest. This, ये shaded area. और जो आपका पॉलीगन है वो आपका शेडेड एरिया से बड़ा है, तो वो पूरे के पूरे शेडेड एरिया को कवर कर रहा है. तो आपको क्या करना है, इस शेडेड एरिया का जो स्पेस है उसको बैकग्राउंड कलर से हटा के इमेज का कलर रखना है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सराउंडिंग पॉलीगन. यू डोंट नीड टू टेस्ट एनीथिंग. इंटरसेक्ट, सेकंड रिलेशनशिप इज इंटरसेक्टिंग पॉलीगन. सॉरी, इंटरसेक्टिंग पॉलीगन. इंटरसेक्टिंग पॉलीगन में क्या है कि ये आपका एरिया है. अब एरिया के अंदर आपके पास ये पॉलीगन आ रहा है, तो जहां पे वो पॉलीगन जितने एरिया में इंटरसेक्ट कर रहा है उतने में आप बैकग्राउंड कलर हटाकर पॉलीगन का कलर दे देंगे. देन यू हैव कंटेन्ड पॉलीगन विच आर इनसाइड इट. कि आपकी जो पॉलीगन की बात करें वो पूरा का पूरा आपका जो है वो इमेज के अंदर ही, व्यू पोर्ट के अंदर है. तो व्यू पोर्ट में सिर्फ उस एरिया में आप कलर वैल्यूज चेंज कर दीजिए जहां पे वो पॉलीगन एग्जिस्ट करता है, बाकी सब आप यूं ही रहने दीजिए. एंड द लास्ट इज डिसजॉइंट. डिसजॉइंट मतलब दे आर कंप्लीटली आउटसाइड, उनका इस एरिया से कुछ लेना देना ही नहीं है. देन इन दैट केस यू विल नॉट चेंज द बैकग्राउंड color. So these are the four cases. If all the polygons are disjoint from the area,
अगर सारे के सारे पॉलीगन्स जो दे रखे हैं वो एरिया के साथ डिसजॉइंट है, देन इन दैट केस आपका सिंपल स्टेप क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर कैन बी डिस्प्लेड इन दैट एरिया। इफ देयर इज ओनली वन इंटरसेक्टिंग और वन कंटेन्ड पॉलीगन, अगर कोई एक ही पॉलीगन है वो इंटरसेक्टिंग है या कंटेन्ड है, then in that case the area is first filled with the background color and then part of the polygon which is contained in the area is tan converted। तो मतलब जितना वो polygon intersect कर रहा है या जितना वो polygon contained है वहां पे background color replace करके image का color दे देंगे। if there is a single surrounding polygon but no intersecting or contained polygon, then that area is filled with the color of the surrounding polygon। Is this clear? Last is, if more than one polygon is intersecting, contained in or surrounding the area, then we need to determine which among them is front। This is the case where you have more than one polygon in that area, where you divide your area into into 4 equal quadrants। क्या करते हैं आप z coordinates that is depth value को कंप्यूट करते हैं चारों कॉर्नर्स पर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के चारों कॉर्नर्स पर z वैल्यूज को कंप्यूट करते हैं। मान लीजिए ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ये यहाँ पे यूजर की आई है। क्यों यहाँ पे यूजर की आई बोल रहे हैं, क्योंकि ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस के इंफिनिटी मतलब हाईएस्ट वैल्यू पे यूजर की आई है। आपके पास 3 पॉलीगन्स हैं यहाँ पे। पहला पॉलीगन सराउंडिंग, आई होप आई एम ऑडिबल। यशी, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. तो यहाँ पर आपके पास 3 पॉलीगन्स हैं। एक सबसे पीछे है कंटेन्ड, जितना ओरिजिन के पास है, फिर है इंटरसेक्टिंग, फिर है आपका सराउंडिंग। क्योंकि सराउंडिंग सबसे आगे है तो आपको क्या करना है, चारों कॉर्नर्स पे z वैल्यूज देखनी है। ये क्रॉस में जो z वैल्यूज है वो आपकी सराउंडिंग पॉलीगन की है, राउंड में जो है वो आपकी इंटरसेक्टिंग पॉलीगन की है, और स्टार में जो है वो कंटेन्ड पॉलीगन की है। Here the 4 intersections of the surrounding polygon are all closer to the viewpoint than that of the other intersections. Thus your entire area is filled with the surrounding polygons color। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर तो कि हर जगह पे किसी भी तरह से देखें आप, सराउंडिंग पॉलीगन ही आपका सबसे आगे आ रहा है। तो पिछले वालों के कलर वैल्यूज को निकालना ही नहीं है, हम सीधा सराउंडिंग पॉलीगन के कलर वैल्यू को डाल देंगे सारा बैकग्राउंड कलर की जगह। लेकिन अगर आपके पास 2 हैं और 2 के केस में इस तरह से है, यहाँ पे सराउंडिंग पॉलीगन है और यहाँ आपका इंटरसेक्टिंग पॉलीगन है। अब जब आपने इसके z एक्सटेंट्स निकाले तो आपने देखा z extents of the surrounding polygon are labeled with x and z extents of intersecting polygons are labeled with rounds। So here what you see is that कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्टिंग पॉलीगन के z एक्सटेंट्स आगे हैं और राइट साइड पे आपके सराउंडिंग पॉलीगन के z एक्सटेंट्स आगे हैं। So here no decision can be made because on the left the plane of the intersecting polygon is in front of the plane of the surrounded polygon। So now your Warnock algorithm will subdivide this area to simplify the problem। So अच्छा, 2 चीजें आपको यहाँ सब डिवाइड करना है, मतलब इसको 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में वो डिवाइड करेगा। ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउ यू हैव टू रिमेंबर 2 things here। Disjoint polygons have no influence on the area of interest, and the part of intersecting polygon that is outside the area is also irrelevant। वो उतना ही irrelevant हो गया जितना हमारे पास disjoint polygon irrelevant है।
and the part of intersecting polygon that is interior to the area is the same as that of contained polygon and it can be treated as such. That means पहला point तो ये है कि अगर disjoint polygon है आपको कुछ करना ही नहीं है, कभी भी एरिया को आपको डिवाइड करना ही नहीं है, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग और कंटेन्ड जो है, कंटेन्ड तो समझ में आता है कि वो पूरा का पूरा अंदर है। इंटरसेक्टिंग को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक जो आधा पार्ट बाहर है वो डिसजॉइंट बन गया और जो आधा पार्ट अंदर है वो कंटेंट बन गया। तो इंटरसेक्टिंग वाले के लिए हमें हमेशा आधा डिसजॉइंट में डाल देना है और आधा हमें जो भी हमारे पास अंदर आ रहा है उसको कंटेंट में डालना है। एंड सेकेंड नोट इज दैट आफ्टर सबडिविजन, सबडिवाइड जब हम कर लेते हैं तब हमें कंटेन्ड और इंटरसेक्टिंग पॉलीगन्स को ही री एग्जामिन करना है, सराउंडिंग और डिसजॉइंट वाले को तो करना ही नहीं है। क्योंकि अगर वो डिसजॉइंट पॉलीगन था, एरिया को 4 में डिवाइड कर लो, 8 में डिवाइड कर लो, 16 में डिवाइड कर लो, डिसजॉइंट तो हमेशा डिसजॉइंट ही रहेगा। और सराउंडिंग क्या है कि अगर वो पूरा का पूरा एरिया को कवर कर रहा था तो उसको कितने भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो एरिया को, सराउंडिंग हमेशा उसको कवर करेगा ही करेगा। So that means कि सराउंडिंग और डिसजॉइंट के लिए दोबारा कंपैरिजंस करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आफ्टर सबडिविजन वी नीड टू री एग्जामिन ओनली दोज पॉलीगन्स व्हिच आर कंटेन्ड एंड व्हिच आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, प्रकृति यहाँ तक क्लियर है? प्रकृति यहाँ तक क्लियर है बेटा? कृतिका क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. So now let us talk about this. If suppose we have these two images, these two polygons inside our area of interest, ठीक है? So regions are labeled with cases which are used to classify them. If one polygon is in front, then it is labeled as 1. If the area is empty, then it is labeled as 2. And if one polygon is inside, surrounding or intersecting, then it is labeled with 3. And small regions are not labeled at all. So look at this now. It is divided into 4 equal parts. Then it is further divided into, each area is divided into equal parts. Now here we have given labeling. Labeling is either the number 1, 2 and 3. One polygon is in front, 2 is empty. जैसे ये वाला आपका स्क्वायर एरिया जो है वो empty है, यहाँ कुछ है ही नहीं, so it is labeled as 2, right? Then 3, when one polygon is inside, yeah, surrounding or intersecting, look at this area. Here you have one polygon which is intersecting it, right? So you have labeled it as 3. Now जहां जहां आप डिसाइड कर पा रहे हैं वहां आपने कलर डाल दिया, जहां आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, it is further divided into 4 equal quadrants. Again the labeling is being done. Where you're not able to find out the color, you will again subdivide it into equal parts, and then finally you will continue till the time you are able to decide. That means till the time your area is small as 1 pixel. I hope this is clear to everybody. हाँ जी, अनिल यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Next algorithm we will cover in the next theory class. और एग्जाम में एरिया सबडिविजन में राइट अ शॉर्ट नोट और एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, ऐसा सा ही क्वेश्चन आएगा जिसको क्वेश्चन को नटशेल में आप राइट अ शॉर्ट नोट कर सकते हैं। और इसको आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ सेट बफर वाले को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? अच्छा, अब next we are going to meet on Wednesday. Wednesday morning we have a class. अच्छा, आप लोगों में से कौन है जो कॉलेज गए हैं प्रैक्टिकल के लिए? कोई गया है पिछले हफ्ते में प्रैक्टिकल के लिए? Am I audible? Yes, ma'am. प्रैक्टिकल के लिए कोई गया है क्या? मैम शायद नहीं गया कोई।
asked me, किसने पूछा था अलग से पर्सनल नंबर पे? यशी, you asked? No, ma'am. Then I think यामिनी होंगी। यस मैम, मस्ट बी यामिनी। हाँ, तो अब थियरी क्लास में तो आते नहीं है, प्रैक्टिकल में वहां जाके क्या करेंगे वो? चलो एनीवेज, हाँ बोलो प्रकृति, बोलो। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? बस एक हैंड रेज हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, वेडनेसडे को आप लोग ट्रायंगल वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। अब एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स ले लो, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स ही लेना, और उसको स्केल, रोटेट, रिफ्लेक्ट, शेयर इन ऑल डायरेक्शंस, ये सब करिए। ठीक है, आई विल नॉट रिपीट द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। अब आप लोग जेड बफर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज की क्लास में आपको करा दिया है। अभी जेड बफर पर मत ध्यान दो, पहले यू हैव टू कंप्लीट विद ट्रांसफॉर्मेशंस, and then you have to start with the same triangle you have to take, and you have to do all the projections which are possible। ठीक है, तो हम वेडनेसडे को जब बात करेंगे उससे पहले आप लोग आपस में मिलकर कर लीजिए और मुझे एक प्रोग्राम सेंड कर दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन का, वेयर आई कैन सी कि आपने मेन्यू ड्रिवन में कौन सा केस छोड़ा है। So any one of you can take the responsibility and give it on the group। वेडनेसडे से पहले कर लेंगे इसको। ठीक है मैम। ठीक है, एंड तृष्णा, तृष्णा, यस मैम। तृष्णा, ये सब आपको अलग अलग आप ही सबको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो कि ये दो बच्चे आपको यूनिफॉर्म स्केलिंग करके दिखा दे, ये दो बच्चे आपको नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग करके दिखा दे। ठीक है, एंड अपने आप आपस में डिवाइड कर लो, तो सब आपको फंक्शंस दे दे, आप उसको एक दो लोगों की अपने साथ टीम बना लो और उसको प्रिसाइजली एक प्रोग्राम में, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में कर कर तृष्णा आप भेजेंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक, ठीक, ठीक है, देन विल मीट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ठीक, ओके बेटा, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू मैम। हेलो तृष्णा। ये वो मेरे को नहीं आता अरे ये सब। लीडर बन गई। लीडर बॉय, लीडर बॉय तृष्णा। जाओ यार, बोर करेगा ये। अरे जाना, तेरे को क्या चिल मचती है? नहीं, अपनी अपनी बदसूरत आवाज सुनानी जरूरी है इसको। जाओ ना, खुद जा लीव करके। अरे तुम बना देना यार प्लीज, हाँ नहीं, मुझे नहीं आता ये। क्या अरे बना तूने देना? अरे वो अरे वाला